Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. Hope you are doing well at your homes. So students, in today's topic, we are going to study about nuclear transmutation. Before that, in last topic, what we have studied about gamma emission. As you all people know that there are three types of emissions: alpha, beta and gamma. This topic is related to them, alpha, beta and gamma, that previously explained. Okay, I'm going to give you a short review about the last topics also, and the new topic, that is about gamma decay. Now, what is nuclear transmutation? Nuclear transmutation is simply a radioactive nuclides or radioactive elements. ठीक है? When a radioactive elements or nucleus become unstable and wants to attain their stability and wants to become stable, it emits radiation. When a radioactive element wants to become stable, it emit radiation in the form of alpha, beta and gamma, is known as nuclear transmutation. For example, there is a nucleus and it is unstable and it wants to become stable. With the emission of radiation, such process is known as nuclear transmutation. The radiation is in the form of alpha, beta and gamma. The unstable nuclei or unstable nuclides is known as parent element, and the stable nuclei after the emission of radiation is known as daughter element or daughter nuclei. Okay. Now, there are three types of emissions: alpha, beta and gamma. Now, let's just explain it with the examples. Now, here is the example of, for example, first we are going to explain alpha particle, then beta particle, then gamma particle. You people have been known with these examples in your last lectures. Okay, let's just begin. I'm going to give you a short review that you will easily understand. Now, for example, what is this? This is a nuclei or nucleus or radionuclides. ठीक है? Now, A represent atomic mass and Z present atomic number. This is atomic number, this is atomic mass. ठीक है? Now, this is an element. For example, it contains number of protons and it contains proton plus neutron. So, for example, an element emit alpha particles or alpha rays, we can say that it emit helium, or we can simply say that alpha particle is known as helium element or helium ray. ठीक है? वो एलिमेंट जो हीलियम रेज को इमिट करते हैं या अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं. ठीक है? अल्फ़ा पार्टिकल्स या हीलियम, इट इज़ सिमिलर. ठीक है? विद द एमिशन ऑफ सम रेडिएशन and the plus amount of energy, with the change in parent element is known as alpha emission nuclear transmutation. Now, alpha emission में क्या था? Now, this is an element. Number of proton शो करता है, number of neutron शो करता है. ठीक है? अल्फ़ा पार्टिकल्स की emission हो रही है. Parent element change हो रहा है daughter element में with the amount of energy. ठीक है? This energy, एक्स्ट्रा एनर्जी. नाउ, इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल, दिस इज़ हीलियम. अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता है? दिस इज़ हीलियम, इस फॉर्म में होता है. दिस इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इस एलिमेंट में से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या होगा? माइनस होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसमें से माइनस होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. ठीक है? इसकी एग्जांपल क्या है? लुक, हेयर इधर 2 है, इधर 4. फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है? 10 रुपीज़ हैं. आप 6 किसी को दे दो तो बाकी आपके पास कितने बचे? 4. ठीक है? इस तरह का है. फॉर एग्जांपल, हीलियम एटम है, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे हैं और हीलियम पार्टिकल हैं. ठीक है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल, हमारे पास ए है, 10 रुपीज़ थे, 10 में से हमने 4 किसी को दे दिए, कितने रह गए? 6 रह गए. तो हम कहेंगे A - 4. Z है हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, हम लोगों ने इसमें से 2 माइनस कर लिए तो हमारे पास कितने रह गए? Z - 2.
दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल. ओके, अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास हीलियम में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीलियम न्यूक्लिया होते हैं या हीलियम एलिमेंट होते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ बीटा पार्टिकल? व्हाट इज़ बीटा पार्टिकल? इज़ सिंपली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है 0 होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है. यानी इसमें मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंज आता है विद द इंक्रीज ऑफ डिजिट 1. इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास भी चेंज होता है, एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है. इसमें एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होता है? विद 4, एटॉमिक मास चेंज विद -2. ठीक है. इसमें -4 जो होते हैं उससे वैल्यू चेंज होती है. फॉर एग्जांपल इसमें एक ए है, ए में से 4 चला गया, इट्स A-4. तो इसमें जो चेंज आता है मास वो -4 के थ्रू आ जाता है, यानी 10 में से 4 गया 6, और इसमें -2 का चेंज आता है. इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर चेंजेस. सो look here in this example. This is a nucleus. For example, this is a nucleus, or you can say there's unstable nuclei or a parent element. ठीक है. This is atomic mass, this is atomic number, and this is the example of beta particle, or we can say in the form of emission of electron. There is going to be no change in atomic mass, but there is going to be change in atomic number. So we can say that when a particle with emission of electron to become stability, this becomes same, and this has a greater change, or we can say that increase by 1 is known as beta particle. ये एक एलिमेंट है A, इसमें चेंज नहीं आ रहा है, ये A का A ही आ जाएगा इधर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 था तो यहाँ 10 का 10 आ जाएगा, यहाँ 20 था 20 का 20 आ जाएगा. देयर इज़ नो चेंज इन एटॉमिक मास. ठीक है. इन बीटा पार्टिकल जब एमिशन होंगे, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से. एज इधर माइनस है तो हम जब इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं Z-2. तो माइनस ऑलरेडी होता है, इसके साथ अगर -1 है तो माइनस इंटू माइनस वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू +1 बाय द रूल ऑफ मैथ्स. ठीक है. नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बीटा पार्टिकल. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक गामा. गामा में क्या होता है, देयर इज़ नो एमिशन. इसमें कोई चेंज नहीं आता. इसमें ऐसा होता है, एक न्यूक्लियस है, उसके पास वो एक्साइटेड स्टेट में, एक्स्ट्रा एक्साइटेड स्टेट में है, और वो स्टेबल होना चाहता है. तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली सिर्फ गामा रेज जो होंगी वो इमिट होंगी, और वो एज इट इज़ का एज इट इज़ हो जाएगा. पेरेंट एलिमेंट जो होता है एलिमेंट के इक्वली या डॉटर एलिमेंट के इक्वली होगा. तो लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ताकि पता चल सके पेरेंट एटम या एलिमेंट कौन सा है, या न्यूक्लियस कौन सा है, और डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा है. तो इसको हम स्टेरिक साइन से डोनेट कर देते हैं. गामा में क्या होता है, गामा में डॉटर एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता, बस इसमें सिर्फ एनर्जी रिलीज़ होती है. और एनर्जी जो होती है किस तरह से रिलीज़ होती है, इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज. जब हमारे पास एक एलिमेंट या हमारे पास कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्स्ट्रा एक्साइटेड स्टेट में, उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और उसको वो अपनी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज जो है वो इमिट करता है, तो वो हमारे पास गामा रे की एग्जांपल है. इसमें डॉटर एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट सेम होता है विद द अमाउंट और रिलीज ऑफ गामा एमिशन, और इसको हम चेंज करने के लिए यहाँ पे स्टेरिक लगा देते हैं ताकि पेरेंट और डॉटर में डिफ्रेंशिएट कर सकें. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ गामा रे. रिव्यू दे देती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा. न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, व्हेन न्यूक्लियर और न्यूक्लियस और रेडियो न्यूक्लियाई जो होता है अनस्टेबल होता है एंड वांट्स टू बिकम स्टेबल इन द रिलीज ऑफ एमिशन और रेडिएशन, दिस इज नोन एज रेडियो न्यूक्लियाई. इन the unstable nuclei is known as parent element, and the stable nuclei is known as daughter element. With the emission of radiation, this radiation is in the form of alpha emission, beta emission, or gamma emissions. Now, these are explained through the examples. In alpha emissions, there is a change in atomic number and atomic mass also. In beta particle, there is no change in atomic mass. There is no change in atomic mass, but atomic number is increased by the value 1, or increased by the digit 1. If we have 10 atomic mass, so atomic mass remains same after the emission of beta particle, and the atomic number will be increased by 1. If here is 20,
So 20 plus 1 is equal to 21. For example, I am going to explain it in other examples too. गामा एमिशन में क्या होता है, एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में होता है और सिर्फ गामा इमिट करता है रेस, पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट सेम होता है, ठीक है. दिस इज़ गामा एमिशन और गामा रेस की एग्जांपल. नाउ दिस इज़ ओके. नाउ इसको मैं आपको डिफरेंट फर्दर एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ इन फर्दर वीडियो. ओके.